Namaste Gurukulians. How are you dear students? Hope you will be fine. I am Subhas. Today we will study class 11th accountancy. And today we will start next chapter 6 GST, goods and services tax. So this is part 1 of this chapter, first video. So one term is tax. What is a tax? The tax is a compulsory payment levied by the government to the public. अब टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो पब्लिक को गवर्नमेंट को देना, पब्लिक ने गवर्नमेंट को देना है. एंड टैक्सेस आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज. फर्स्ट डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स. सेकेंड इनडायरेक्ट टैक्स. Direct taxes are those taxes which are paid by one person and it also goes out of the pocket of that person. It means the burden of this tax cannot be shifted on others like income tax. अब income tax कौन पे करता है? Who is earning income? जिसकी इनकम है तो उसी की पॉकेट से जा रहा है. The same person is paying the tax. Its burden cannot be shifted on others. Second is indirect tax. Indirect tax is that tax which is paid by one person and goes out of the pocket of another person. It means the burden of this tax can be shifted on others. अब जैसे सेल टैक्स है, सेल टैक्स is paid by the seller and it goes out of the pocket of customer. मतलब जिस टैक्स का बर्डन हम किसी दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है. तो वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. इट इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स. तो ऑल सच टैक्सेस आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस whose burden can be shifted on others or which are paid by one person and goes out of the pocket of another person. So in 2017 the government of India clubbed many indirect taxes into one tax that was called as goods and services tax. Goods and services tax means GST. The GST Act was passed on 24th March 2017 in Parliament and it was implemented from 1st of July 2017. जो GST है वो 1 जुलाई 2017 से ये इम्प्लीमेंट हुआ. तो इन GST different indirect taxes like excise duty, sale tax, VAT, service tax were clubbed in one tax. जितने भी ये taxes थे, some taxes were imposed by central government, some were imposed by state governments, and one thing more, the rates of all these indirect taxes were different in different states. हम जब बिजनेस करते थे तो जो बिजनेसमैन है they have to pay many taxes in different states at different rates. So government has clubbed all these indirect taxes in one tax that is called as goods and services tax, GST. So nowadays GST is imposed all over the country at uniform rate in all the states. And now we will study the taxes imposed by central government were clubbed into GST. जो सेंट्रल टैक्सेस थे सेंट्रल टैक्सेस ये थे 3. एक तो थी एक्साइज ड्यूटी,
एक्साइज ड्यूटी इज दैट टैक्स विच इज लेविड ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए गुड। जब भी किसी गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। सेकंड था सेंट्रल सेल टैक्स। CST। तो CST वाज इम्पोज्ड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। जब भी सेल करते हैं जितनी सेल हुई है उस पर फिक्स्ड परसेंटेज से, ये भी GST में आ गया। एंड थर्ड था सर्विस टैक्स। When any service is provided, tax is to be paid. तो 3 taxes which were earlier levied by the central government, now these 3 taxes, excise duty, central sale tax and service tax, all are clubbed into GST. And some more taxes which were imposed, which were levied by the state governments, these are state level taxes. State level taxes which were merged into GST, उसमें एक तो था ऑक्ट्री एंड एंट्री टैक्स। ऑक्ट्री एंड एंट्री टैक्स, जब भी कोई गुड्स किसी म्यूनिसिपैलिटी की बाउंड्री में वो एंटर होता था तो उस पर एक टैक्स लगता था जिसको हम ऑक्ट्री बोलते थे, चुंगी, या एंट्री टैक्स है। दैट वाज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, इट इज क्लब्ड इन GST। अनदर वाज परचेज टैक्स। In some states, at the time of purchase of goods, tax was imposed, that is purchase tax, entertainment tax, कुछ इंटरटेनमेंट सर्विसेज प्रोवाइड होती थी, जैसे आप सिनेमा देखते थे, मूवीज, उस पर टैक्सेस लगता था। दैट टैक्सेस were imposed by these state governments, that is also clubbed in GST. One more, VAT was imposed। VAT की full form है value added tax। तो this tax was also imposed by state governments, it is clubbed into GST। luxury tax था, luxury tax were imposed by state government on luxurious goods, that also included in LUXURY GST। and taxes on lotteries also। taxes on lottery, तो कुछ स्टेट में लॉटरीज थी, हरियाणा में नहीं थी। तो ऑन लॉटरीज आल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स वर इम्पोजेस टैक्स। तो ऑल दीज टैक्सेस which are imposed, which were earlier imposed by state government, were clubbed into one tax, that is GST. Now the government has given a punchline that one nation one tax। अब कंट्री के किसी भी स्टेट्स में आप चले जाओ, गुड्स और सर्विसेज पर हर स्टेट में जो टैक्स GST का जो रेट है वो इक्वल होगा, एक्सेप्ट 2 थिंग्स। वन इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सेकेंड इज एल्कोहल, एल्कोहलिक लिकर्स, शराब है और पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं। एल्कोहल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन GST। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, एंड टैक्सेस इन डिफरेंट स्टेट्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। नेक्स्ट इज फीचर्स, ये नेक्स्ट पॉइंट इज GST rates।
For the imposition of GST, the government has made 5 categories. जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको 5 कैटेगरी में वो डिवाइड किया है. एंड टैक्सेस आर इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू दीज 5 रेट्स. तो उसमें कुछ चीज़ें जो असेंशियल आइटम्स हैं, essential items including food, नो टैक्स मीन्स 0%. हमारी लाइफ के लिए जो कुछ नेसेसरी थिंग्स हैं उसमें कुछ फूड आइटम्स भी हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, ये विच आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. ऑन सच गुड्स नो GST इज इम्पोज, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST. सेकेंड है कॉमन यूज आइटम्स. On common use items, GST is imposed at the rate of 5%. अब common use items included those items which are commonly used by the people. List is long, बहुत लंबी कैटेगरी है और ये जो रेट्स हैं ये चेंज भी हो जाते हैं कई बार. जैसे 5% वाला 12% की कैटेगरी में चला गया, या कई बार एग्जेम्प्ट होगा टैक्स. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रेट, वो 12% है. स्टैंडर्ड रेट ऑफ GST है वो है 12%. और इसके अलावा मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज वो 18% पर है. एक जो कैटेगरी है मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज, वो 18% की कैटेगरी. इसमें सबसे ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज आती है, वो 18% से. इसके अलावा एक और स्लैब है वो है 28% का, वो है लग्जरी गुड्स का, लग्जरी आइटम. ये लास्ट कैटेगरी है जो हमारे ऑफिस के लिए, ये हमारी लाइफ के लिए जो कंफर्ट्स हैं, लग्जीरियस गुड्स हैं. GST इज इम्पोज ऑन सच गुड्स एट द रेट ऑफ 28%. So in this way, these 5 categories are made for the purpose of collection of GST. Now next is goods and services exempted from GST. There are some goods or services on which no GST is imposed. कुछ ऐसी हैं सर्विसेज हैं, गुड्स हैं जिस पर GST नहीं लगता, जो जिनको GST से छूट मिली है. वो हैं एक तो वेजेज एंड सैलरीज. जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करता है, वेजेस पे करता है. ऑन सैलरी एंड वेजेस नो GST इज इम्पोज्ड. सेकेंड इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और फॉरेन एम्बेसीज. कोई भी प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को कोई गुड या सर्विस सप्लाई करता है, या फॉरेन एम्बेसी को, विदेशों के जो दूतावास हैं उनको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑन सच गुड्स एंड सर्विसेज GST विल नॉट बी चार्ज्ड. थर्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स. आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, वाटर सप्लाई का बिल पे करते हैं, नो GST इज चार्ज्ड. नेक्स्ट एजुकेशनल सर्विसेज. एजुकेशन के लिए आप फ़ी पे करते हैं, एडमिशन फ़ी, स्कूल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, नो GST चार्ज. हेल्थ सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल में आप जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो एक मिनिमम अमाउंट तक की पेमेंट है. जैसे आप होटल में को, ये हॉस्पिटल में कोई लग्जरियस रूम नहीं है, उस पर GST नहीं है. ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं. इफ़ यू ट्रेवल टू अदर स्टेट्स और अदर कंट्रीज ऑल्सो, अब्रॉड ऑल्सो, तो ऑन टिकट, जो आपकी एयरलाइन की टिकट है, रेलवे की टिकट है, उस पर GST नहीं है. इसके अलावा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उस पर भी GST नहीं है. आपका मनी डिपॉजिट है बैंक में, बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है, तो GST इज नॉट चार्ज्ड. तो दीज आर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ GST.
तो फर्स्ट फीचर इज जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। comprehensive indirect tax. I told you about indirect tax, which are imposed one person and burden of which is shifted on others. So it is a comprehensive tax because many kinds of goods and services are included and all indirect taxes are clubbed in one tax, that is indirect tax. तो हमारे कंट्री में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, कुछ को छोड़ करके, जैसे अल्कोहल है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जीएसटी इज चार्ज्ड एट डिफरेंट रेट्स ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड इज यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स। The rates of GST imposed in different states are uniform. हर स्टेट में जो GST के रेट हैं वो एक जैसे हैं, इक्वल हैं। GST is imposed on different goods and services at uniform rates in all the states of country. Third is GST paid is not a cost. GST paid is not a cost. Whatever amount of GST is paid at the time of purchase, it is not a part of cost of the product because it can be set off against GST collected at the time of sale of goods. अब जैसे हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेज के टाइम लगता है इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। मान लीजिए गुड्स परचेज किया 1 लाख का, जीएसटी का रेट है 12%, तो इट विल बी 12,000 ऑन 1 लाख 12%। अब जो सेल करोगे दैट गुड्स आर सोल्ड, मान लीजिए वो 1 लाख का गुड 1.5 लाख में सेल किया, तो 1.5 लाख पर 12% ये होगा 18,000। सेल के टाइम जो जीएसटी है उसका नाम है आउटपुट, आउटपुट जीएसटी 18,000। तो हमने पे किया है 12,000 एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, और जब सेल करा तो ये कलेक्ट करा है 18,000। तो जो 12,000 इनपुट था इससे सेट ऑफ होकर के जो रिमेनिंग 6,000 है, दिस 6,000 विल बी पेड टू द गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो 12,000 था उसमें से आउटपुट से एडजस्ट हो गया हमारा। वी हैव कलेक्टेड 18,000, वी हैव पेड 12,000, ओनली 6,000 इज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। एंड फोर्थ इज जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। जो जीएसटी है इट इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडिशन, एवरी वैल्यू एडिशन। अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं है, सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स है। मान लीजिए इसी को एग्जांपल को ले हम, फर्स्ट गुड्स आर परचेज फॉर ₹1 लाख, ओके, वी विल पे जीएसटी ऑन 1 लाख, रेट इज 9% है तो 9,000 हो जाएगा। इसके बाद ये गुड सेल कर दिया 1,50,000, तो अब जो टैक्स लगेगा वो 1,50,000 पे लगेगा। अब क्योंकि परचेज किया था 1 लाख का, अब इस पर जीएसटी लगा 9%, तो टोटल परचेज कितना हुआ 1,09,000। अब उसका प्रॉफिट है 50,000, अगर इसमें 50,000 प्रॉफिट ऐड करें तो 1,59,000 में सेल हुआ। लेकिन अब जो टैक्स लगा था एक बार 9,000 इसमें टैक्स ऐड है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा।
ओनली वैल्यू एडिशन, जितना वैल्यू में एडिशन हुआ, जो प्रॉफिट है सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा। 1,50,000 का 9% लगेगा, 1,59,000 पर नहीं लगेगा। टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं है। जीएसटी इज इम्पोज्ड ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, नॉट ऑन टैक्स ऑन टैक्स। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी एंड देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, यू कैन से इट एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। इसके क्या बेनिफिट्स हुए हैं जीएसटी आने से? फर्स्ट है डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। इससे जो गुड्स की कॉस्ट है वो काफ़ी कम हुई है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस थे, वो डिफरेंट रेट से थे, तो उससे कॉस्ट काफ़ी हमारी इंक्रीज हो गई थी। तो ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ सेम टैक्सेस इन ऑल द स्टेट्स, द कॉस्ट ऑफ गुड्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड। अनदर इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फॉर बिजनेसमैन it become easy, they can operate business in any state. In every state taxes are imposed at the same rate. तो दूसरे स्टेट्स में जा कर के बिजनेस करना भी इजी हो गया। इसके अलावा डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, जो जीएसटी है उससे हमारी जो नेशनल मार्केट है ऑल ओवर द इंडिया इज बिकम कॉमन। इन एवरी स्टेट टैक्सेस आर सेम, हर स्टेट में एक जैसे टैक्सेस हैं। तो इंटरनेट जो हमारी नेशनल मार्केट है, नाउ इट इज़ वर्किंग ऑन कॉमन बेसिस। एंड वन मोर बेनिफिट इज रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। पहले लोग टैक्स की चोरी करते थे, अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। वी फाइल ई रिटर्न फॉर टैक्सेस, तो इट बिकम इम्पॉसिबल टू अवॉइड द टैक्सेस। जो टैक्स इवेजन था, टैक्स की चोरी थी, वो बंद हो गई है। इसके अलावा वन मोर एडवांटेज इज गुड्स बिकम चीपर। जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सस्ती भी हुई है, क्योंकि जब डिफरेंट स्टेट से हम मंगवाते थे बहुत सारे टैक्सेस थे स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग रेट्स में, तो अब कॉमन टैक्सेस है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं, द वैट खत्म हो गया। दैट्स वाई द गुड्स बिकम चीपर फॉर द कंज्यूमर्स। एंड इट आल्सो हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज हैं, दे आल्सो अट्रैक्टेड व्हेन ऑल ओवर कंट्री द कॉमन टैक्सेस वर इम्प्लीमेंटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस टैक्स जो सिस्टम है, इट बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। हमारा जो टैक्सेस का सिस्टम था वो ज़्यादा उसमें पारदर्शिता भी आई है। इसके अलावा एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। अंडर जीएसटी taxes are divided in 3 categories. First, CGST. Second, SGST. Third, IGST. Central Goods and Services Tax, State Goods and Services Tax, and Integrated Goods and Services Tax. तो first two, CGST and SGST, are imposed in case of intra-state sales. Intra-state sales means when goods are sold within the same state. एक ही स्टेट के अंदर, एक सिटी से दूसरे सिटी में गुड्स की सेल परचेज होती है, तो वो है इंट्रा स्टेट सेल्स। तो इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स जीएसटी इज इम्पोज्ड, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जो सीजीएसटी है, जो भी जीएसटी लगेगा 50% पार्ट विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। तो दिस टैक्स इज इम्पोज्ड इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स। जब भी एक गुड्स की सेल परचेज दूसरे स्टेट्स के साथ होती है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो आईजीएसटी
integrated goods and services tax is imposed. In IGST also, both central and state governments will get 50% share each. So in next video we will continue the same chapter. We will discuss how the journal entries will be recorded in case of GST. So till then, goodbye students. Have a nice day. Good luck.